Okay, another success story at Career Comeback Hub. We have Deepika Yadav with us today, who is again a very growth-oriented professional. She had a career break, but she did all the right things to come back after that. Deepika, welcome to this success story recording. How are you? Thank you so much, sir. I'm very good. And Perfect. thank you so much. Yeah, I'm able to restart my career after a long journey. Perfect. Awesome. Awesome. Deepika, just take us through your journey before your career break. What were you doing before your career break, and how did the break happen? And just take us through the journey there. I've completed my BTech from electronics, and after that, I got placed in a good company. There, I worked as a purchase engineer for 1.5 years. But after that, I've decided to, matlab, spend time in my government exam preparation. So there, I took a career break of 2 years in the starting phase, and the things were going, and I've started preparing for the government exams, but the things didn't well went, and I missed the exams by very less margin. Sometimes it may be 0.5, 0.25. So I started feeling that no, government job is not in my matlab, I will not able to crack the exams. But fortunately, at that time, at the COVID period scenario, I cleared the EPFO exam, and I cleared the tier one, tier two, and finally the third town. But at the last attempt, at the interview, when the interview was scheduled, I was not able to crack the interview of this Okay. exam. Okay. So from there onwards, I have decided to come back again in the professional, in the corporate sector. So I have joined a small startup there, and there I worked for 6.5 months. But after that, what happened? Some health issues and some personal family, due to some personal family reasons, I have to quit that startup again. This was 2018. ये 2018 में हुआ था. This is 2019. 19. At the Okay. December I'm talking Okay. about. Okay. From 2020 onwards, I have started basically home tuitioning. And meanwhile, I'm preparing again for the exams. And then in the year 2022, I have seen your Instagram post कि Okay. the women with a career comeback can join the cohort program. And initially, I remembered only 4 to 5 women were there. From there, you have started your journey, and I was the part of that group. Yes, the initial group. Initial group, and then I started, मतलब बेसिकली मैंने ये होप ही छोड़ दी थी कि मतलब मैं फिर से ज्वाइन कर पाऊंगी या नहीं सेक्टर को, मतलब इतना करियर का ब्रेक आ चुका है क्योंकि 5 इयर्स का बैक हो गया था। 2017 में मैंने ग्रेजुएशन की थी, फिर 2016 में 2017 मैंने जस्ट 1 ईयर का ही मेरा प्रॉपर जो था वो एक था प्रोफाइल कि मैंने 1 साल काम किया। बट आफ्टर दैट जो भी था गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन, हेल्थ इश्यूज, या जो मैंने स्टार्टअप पे वर्क किया वो मिडवे था, मतलब 3 to 4 months किया फिर क्विट कर दिया। तो 5 इयर्स का सिग्निफिकेंट गैप था उस टाइम। बट So 2022 में by 2022 आपका गैप 5 years का हो गया था करियर पे. यस, क्योंकि मैंने 23, अभी हमने 24 लास्ट ईयर ही हमने मई के अराउंड मैंने आपका ये कोहोर्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया, ज्वाइन किया। Last year I started this. Yes. हाँ, इन द मे। तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड मतलब टेकिंग द क्लासेस, इनिशियली यू स्टार्ट मतलब सेट योर माइंडसेट फर्स्ट। या जब तक हम माइंडसेट सेट नहीं करेंगे नथिंग विल हैपन। And taking actions and your environment, your habits, all the things will work. तो पहले मुझे ऐसा लगता था these are just motivational lines कि नहीं ऐसा नहीं होता। But when I started practicing these things, I think yes, things will start working good for me. Initial I have start मतलब मैंने LinkedIn प्रोफाइल छोड़ दी थी अपनी कि LinkedIn पे मैं मतलब एक्टिव नहीं थी कि LinkedIn से कुछ नहीं होता कि I will not be able to मतलब crack land a good job from the LinkedIn. तो बेसिकली मैंने LinkedIn प्रोफाइल को रिवैम्प किया, रिज्यूमे बिल्डिंग स्टार्ट की अपनी। एंड मीनवाइल जो स्टार्टिंग में आपने एक लिंक भेजी थी कि डेली यू हैव टू जस्ट गो थ्रू इट फॉर 1.5 hours ताकि आपका जो मतलब माइंडसेट है वो बढ़िया रहे। और उसमें Are you talking about the audio Strangest Secret of the World? Yes, Stranger Secrets of the World. I forget the name. फिर देन उसके बाद मैंने कुछ इंटरव्यूज भी अटेंड किए
but then I land a job in Policy Bazaar. I think I have told you about that. You did, But yes. that didn't align with my job profile. वहाँ पे, but you told me कि initially you didn't मतलब go to that place where you want to be. You have to be start at a मतलब base level first. Correct. Start to, you get back to the industry first, and then you can keep searching. So fair in September, I started working in Policy Bazaar, and after 3 months, I land a very good job in Flipkart. मतलब, Amazing. so Flipkart right now I'm working in a Flipkart entity Myntra in Gurgaon, Amazing. where Amazing. the analyst profile. Wow. So I've been working there from the last 4 years. In 16th April, I have completed 4 months there. So this is Amazing. my whole journey. But अभी भी still the जो चीजें हमने analyze की, जो मतलब patience, you have to first believe on yourself, and you have to keep patience, and चाहे relatives, ignore about your relatives first. चाहे वो कुछ भी बोल रहे हैं कि नहीं यार आपको इतना टाइम हो गया है, आपको जॉब नहीं करनी चाहिए, आपको जॉब नहीं मिलेगी, you won't be able to stand in the मतलब competitors इतने हैं, नहीं हो पाएगा, but नहीं, everything will be possible with a good mindset. And you proved it, Deepika. Deepika, एक बात बताओ, 2024 में आप कोहॉर्ट में आए मई में, तो तब तक आपका करियर गैप क्या 7 years का हो चुका था? Was it a 7 years career from 2017 to 2024? 5.5 हो गया था मेरा, मतलब approximately 6 years. Approximately 6 years of career break हो गया था. Yes. उसके बाद you are saying you followed whatever was told in the cohort. आपने actually अपना environment, habits, action ठीक किया. Yes. Steps follow किए. Steps follow किए, और मैंने अपनी जो प्रोफाइल थी उसको थोड़ा सा डिफरेंटली वो किया, फिर से मतलब रिवैम्प किया. जैसे मेरे आई वाज इन द एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड, but from there I was looking for data analyst. I switched to data analyst profiles. So initially I took the Coursera courses. Very I good. started taking the projects and मतलब posting on the LinkedIn. Correct. And Correct. making networking, मतलब start networking on the LinkedIn. Correct. तो मैंने अपनी जो प्रोफाइल है वही स्विच कर ली कि डेटा एनालिस्ट इन डिमांड राइट नाउ, तो मैं अपनी प्रोफाइल इस वे में स्टार्ट करूं, बिकॉज वहाँ पे कोई एज फैक्टर डिपेंड नहीं होता, और आपकी क्वालिफिकेशन भी बेटर नहीं करती कि वेदर यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम द बीसीए और द बीटेक और मतलब व्हाटएवर स्ट्रीम. यस, इसलिए तो इसीलिए वो धीरे धीरे स्टार्टिंग में अभी करते करते अभी जो मेरे को पोजीशन यहाँ पे मिली है वो मेरे को इसी स्किल में मिल गई है, डेटा एनालिस्ट में. बट ये भी अभी आई कंसीडर की मतलब माय ड्रीम, यस, आई एम स्टिल लुकिंग फॉर मतलब great opportunities. That will always happen. You will Yes. move up, I'm sure, and then again your target will move up. The goal will also evolve. हाँ. Right. And one thing also I want to share कि मेरे को जैसे एक करियर गैप के टाइम लोगों से इंटरेक्ट करने में प्रॉब्लम होने लगी थी. I was not able to interact with people. मतलब वही चीज फंबल होना, अपने आप को अच्छे से नहीं समझा पाना, मतलब कि तुम क्या कहना चाह रहे हो प्रेजेंट वे में. तो ये चीज भी मैंने थोड़ा थोड़ा भी अपनी स्किल्स को डेवलप करना स्टार्ट किया है. इवन आई एम टॉकिंग टू यू, अभी भी मैं मतलब इतना वो नहीं हूँ कंफर्टेबल कि दैट्स अ प्रोसेस, दैट्स धीरे धीरे आ जाएगा, धीरे धीरे. बट ये चीजें जो है वो एक्चुअली में वर्क करती है. एंड मैं अभी भी उस मतलब सर्कल का कॉल हूँ. जब हमने स्टार्ट किया था तो इट वाज जस्ट 4 to 5 मेंबर्स इन द ग्रुप, बट राइट नाउ देयर इज अ ह्यूज इंपैक्ट. मतलब जो नंबर्स है वो इतने क्रॉस हो गए हैं. इट इज टचिंग अराउंड 500 प्लस मेंबर्स इन अ कम्युनिटी. यस यस, नंबर्स भी काफी ज्यादा हुए हैं, प्लस सक्सेस स्टोरीज भी बहुत सारी आई हैं. एंड इट्स ऑल बिकॉज द इनिशियल फ्यू मेंबर्स हु जॉइन, दे फॉलोड द प्रोसेस. आप लोगों ने बिकॉज प्रोसेस अच्छे से फॉलो किया तो रिजल्ट्स मिल गए सबको. When everybody started getting results, the word of mouth went away. It's actually nothing, it's just following, surrendering to the process. जैसे आपने बोला, जब ऐसा लगता है कि जब कोई बोल रहा अपना एनवायरनमेंट सही करो, हैबिट सही करो, प्रोसेस फॉलो करो, तो ऐसा लगता है मोटिवेशन है. बट द रियलिटी इज दैट इज द प्रोसेस दैट गिव्स यू द रिजल्ट. राइट. है ना? And one quote I want to say, like, believe before you pray. And it's perfectly मतलब मेरी साथ ऐसा ही हुआ है. मतलब अगर मैं बिलीव कर रही हूँ देन तभी वो चीज पॉसिबल हुई, अदरवाइज वो पॉसिबल ही नहीं थी. क्योंकि जब से मैंने अपना माइंडसेट चेंज करना किया नहीं, आई विल बी एबल टू क्रैक दिस, आई विल बी एबल टू डू दैट, तभी चीजें होनी पॉसिबल स्टार्ट हुई है. यस. एंड द थिंग
थिंग इज कि जब मेरी फर्स्ट जॉब थी आई वाज मतलब तो दैट वाज नॉन एमएनसी कंपनी, तो ये मेरी फर्स्ट एमएनसी जॉब भी है, तो फ्लिपकार्ट इट्स अ बिग टैग, यस मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट। इसलिए तो थैंक यू सो मच सर फॉर योर Amazing, no गाइडेंस। problem. मतलब whenever I need, whenever I text you, message you, when I have doubts, you are always there to help me. Right. It's my privilege to actually have helped you, Deepika, because I know that उतने बड़े career break के बाद काफी negativity mind में आ जाती है, right? And Right. people generally break down, they quit. They would listen to everybody around them and they say it's not possible for us. But you held on to that belief. And I also want to ask you, what helped you? Because आपके around भी सब बोल रहे होंगे, आपको भी negative feeling आ रही होगी, especially after 6 years of career break. Positivity maintain रखने के लिए क्या help किया आपको? Exactly what helped you? पॉजिटिविटी मेंटेन करने के लिए एक तो मेरे जो हमारी वीकली इनर सर्कल कॉल्स होती थी, सबसे ज्यादा तो उसी से हेल्प मिली है। क्योंकि जब वो हम इनर सर्कल कॉल में आते हैं तो जितने भी हमारे मेंबर्स होते हैं, कोर्ट मेंबर्स, उनकी जो स्टोरीज होती है, उनके जो व्यू पॉइंट्स होते हैं, और जिस हिसाब से आप उसको मतलब डील करते हो, तो वो एकदम से आ रहा था कि नहीं यार, आई एम नॉट अलोन, देयर आर सो मेनी अदर पीपल्स आल्सो इन दिस मतलब सर्कल। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ 1000 सिर्फ मैं ही मतलब एक तरह से विक्टिम हूँ। आई एम नॉट अ विक्टिम, आई हैव टू गेट आउट फ्रॉम इट, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। True, किसी के साथ किसी भी स्टेज पे हो सकता है, यू नेवर नो व्हाट द रीजंस आर। true, very तो true. ये चीजों को मैंने बार बार मतलब रीअलाइन किया अपने माइंड में कि नहीं, हमें जैसे प्रॉब्लम्स आती है, सबके साथ प्रॉब्लम्स है कि कुछ ना कुछ, पर हमें इससे डील करना होगा। तो जो हमारी स्टार्टिंग की 3 to 4 months इनर सर्कल कॉल्स का मैंने एक भी सेशन मिस नहीं किया था उसमें। I remember you हाँ attending each and every. Only after you got a job, then you started missing. I हाँ, mean, वो of course, you would be in office. नहीं, बट फिर भी आई एम एक्टिव ऑन द ग्रुप एंड You आई are, एम you are. जस्ट सीइंग द पोस्ट की व्हाट इज गोइंग ऑन। Amazing, amazing, यस amazing. And what about the technicalities? When you appeared for the Policy Bazaar interview for the first time, how did you handle questions around career break? Did questions around career gap come to you at that time? How did you यस handle? इट बेसिकली जब मैंने पॉलिसी बाजार ज्वाइन किया तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कि आई हैव अ करियर गैप, सो दे आर नॉट ऑफरिंग मी द गुड पैकेज। द फर्स्ट मतलब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई, बट मैंने उसको भी फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, आई हैव टू स्टार्ट इट। ये आपने WhatsApp पे भी Yes. क्वेश्चन पूछा था मैंने मुझसे, I व्हाट्सएप पे आपसे remember. पूछा था, आई हैव टू डाउट बेसिकली कि मतलब दे आर गिविंग मी द बेसिक सैलरी पैकेज, तो शुड आई जॉइन इट और नॉट। So when you told me कि no, you have to start it at least just for either 2 months, 3 months, just develop your skills, start doing projects around it, about the sales and all that. तो उस चीजों को मैंने एज अ पॉजिटिव लिया कि ठीक है, एंड ना पॉलिसी बाजार इट इज अ कस्टमर बेस्ड कंपनी, यू हैव टू डील विद द कस्टमर्स, तो आई कैन मतलब अलाइन माय स्किल्स अकॉर्डिंग टू देम। Perfect. और exactly 3 months बाद आपको दूसरी opportunity आ 3 गई. months बाद आई वाज, मेरे को दूसरी अपॉर्चुनिटीज मिल गई बिकॉज एट दैट टाइम आई वाज एक्टिव ऑन naukri.com प्रोफाइल Yes. एंड लिंक्डइन प्रोफाइल। You were in the industry already. यस एंड मीनवाइल आई वाज मतलब उस टाइम ये था कि थोड़ा ट्रैवलिंग का भी इशू था। आई थिंक आई हैव टोल्ड यू आल्सो कि मतलब ट्रैवलिंग इश्यूज इतना है, और वहाँ पे रोस्टर का भी था कि आपको रोस्टर बेसिस पे ऑफ मिलता है, तो आई वाज नॉट गेटिंग मतलब टाइम कि मैं कुछ प्रिपेयर कर लूं या ऐसा कुछ, बट स्टिल दिमाग में ये था कि नहीं, अगर आप किसी चीज में, अगर आपको वहां से निकलना है तो आपको करना ही पड़ेगा। तो फिर ये मतलब मोटिवेशन थी दिमाग में जब आप पूरा यहाँ टनल तो क्रॉस करना पड़ेगा नेक्स्ट हाँ साइड जाने के लिए. यस, उस टनल को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। और उस टाइम पे भी आई वाज एक्टिव ऑन द कॉल्स, जो हम You were, कॉल्स yes. में डिस्कशन I कर think रहे आप मेट्रो से ट्रैवल करते थे, कभी कभी आप ट्रैवलिंग के टाइम भी थे। कॉल्स यस पे रहते थे, राइट? इन सर्कल एंड कॉल्स. जो आपके साथ मेरा 1-to-1 कनेक्ट हुआ था, आपने एक दो बार मतलब इट वाज कनेक्टेड आई गेस 3 to 4 टाइम्स हमारा 1-to-1 कनेक्शन भी हुआ है, दैट रियली हेल्प्स मी। तो मतलब ये सारी चीजें है कि मतलब स्टार्टिंग में क्या था कि नॉट इवन माय फ्रेंड्स, ना फैमिली मेंबर्स, किसी के साथ भी अगर हम कोई चीजें डिस्कस कर रहे थे, दे वर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, बट व्हेन आई गेट इन टच विद यू, यू स्टार्टेड टेलिंग थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। तो वो चीजें सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आई है, मतलब तभी से मैंने स्टार्ट किया है जॉब का। अर्लियर में तो मैं यही सोच रही थी कि शायद अब जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी सच में, और अगर मिलेगी भी तो जो मेरी प्रोफाइल है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो जब पॉलिसी बाजार ज्वाइन किया तो मेरे डेजिग्नेटेड पोस्ट नहीं मिली, बट यू स्टार्ट टेलिंग कि नहीं, कि आपके पास जो प्रोफाइल है आप उसमें अभी करो और उसके बाद में आप स्विच कर लेना।
तो फिर जब आपने ऐसा बोला तो 3 महीने बाद मुझे मिल गई, तो मतलब मैंने सोचा, अपना माइंडसेट चेंज किया, तो उस वजह से आई बिलीव कि वो चीजें पॉसिबल हुई। Very true. इट राइट। Very तो true. ये Because सब you kept your mindset positive. That's why positive हम्म। thing happened. और सबसे ज्यादा उसमें स्किल बिल्डिंग, जो आप मतलब डेली अपनी कॉल्स में, जो हमारा ये चलता है अब बूस्टर सेशंस, उसमें जो रिज्यूमे वगैरह हम लिंक्डइन करते हैं रिव्यू, उसमें भी मतलब ये इफेक्ट डालता है कि इट इज फ्रेंडली आपका रिज्यूमे होना चाहिए, देन यू विल गेट सेलेक्टेड इन द जॉब्स। एंड it doesn't depend कि you have to like present yourself only in the English medium or Hindi medium. That मतलब does if not you are matter. talking to the bilingual language also to the interviewer, but your point is up to the mark, then you will Yes. be selected. Yes, very true. Yes. Everybody wants to work with people who can work. Language तो it's a matter वो learn की जा सकती है. जहाँ आप जाओगे वहाँ की लैंग्वेज आप लर्न कर लोगे, बट काम आता है कि नहीं, and आप अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहे हो कि नहीं, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट Yes. चीज है. Amazing, Deepika, amazing. And And then, one yeah. one more thing I want to share कि I've just मेरे को 4 months से complete हुए हैं यहाँ पे Flipkart में. So basically there's a visit of the finance head in our company of Flipkart, and I got a best behavior award also from there. Wow. So that's a Many significant congratulations. achievement. Thank you so much. Many congratulations, So Deepika. these are the small things which are making my day. And recently it's the first time that मतलब कि मेरे को मतलब काफी अच्छा लगा कि मतलब ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद मुझे फर्स्ट अप्रिसिएशन यहाँ से रिसीव हुआ है अभी। Very good, very good. So you're liking your work, you're liking your profile, and of course growth will keep on happening, and everybody should target Yes, growth. I am liking, मतलब बेसिकली जिस डोमेन में मेरे को आना था, जो मेरे को वर्क प्रोफाइल चाहिए थी, मेरे को वही वर्क प्रोफाइल मिली हुई है, उसी डोमेन में हूँ। तो डेट्स एक सेटिस्फेक्शन है कि यस, कि एटलीस्ट मैं, अगर मेरे को स्टेप्स चढ़ने हैं लेटर पे, तो एटलीस्ट मैंने 5 to 6 अपने स्टेप्स कवर कर लिए। जो रिमेनिंग 4 to 5 बचे हुए वो भी फिर मीनवाइल हो जाएंगे। बिल्कुल हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो यस, तो राइट नाउ आई एम ना मिडल से थोड़ा ऊपर, मतलब आउट ऑफ 10 आई एम एट इफ आई कंसीडर, तो आई एम एट 7 to 8। Amazing. That's an amazing number. Perfect, perfect. दीपिका, जब आप पॉलिसी बाजार से फ्लिपकार्ट मूव किए, उस समय का एक्सपीरियंस बताओ. You were active on Naukri and LinkedIn. Did you apply or did you receive a call from Naukri? How did this happen? Yes, I was active because after 3 months in the policy bazaar, I started feeling कि it is the things are not going well. अब बाहर निकलने का टाइम आ गया है. Things are not going well, so I have to be मतलब active on these platforms. So I choose 2 platforms only, Naukri.com and LinkedIn.com. So on Naukri.com, what I used to do, I spent half an hour in the morning time traveling, मतलब traveling in metro. I updated my resume and posted and just applied on the relevant jobs there. And you updated as a data analyst. Yes. You revamped. So, Data analyst keywords on like operation. In this my current profile, my job is not directly like data analyst. It is Correct. operational analyst. Okay. It is मतलब related to the operations. Okay. The profile is operations analyst. So data analyst, business analyst, operations analyst, and these are all are similar jobs because you have to work on the 2 or 3 tools like Excel, SQL, Power BI. तो I was like कि नहीं, तो मतलब Naukri.com और LinkedIn.com, these are the 2 platforms I mostly used. And you tailored your resume every time you applied. My resume according to the JD. Very nice. Yes. Very nice. And what did you do on LinkedIn? On LinkedIn, I have to like you told me like you have to filter your process like according to the location, according to the profile, and according to the JD. So from there, I took help from the ChatGPT to revamp my resume. Then I uploaded, मतलब उस पर अपलोड करके फिर जो भी था उस प्रोफाइल पे कनेक्शंस, कि आपको जो उस इंडस्ट्री में जो वर्क कर रहा है आपको उससे कनेक्टेड होना है. एंड वो कनेक्शन भी ऐसे नहीं है कि आप रेंडमली, जैसे आप आज अप्लाई कर रहे हो तो आज ही आप कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करो. यू हैव टू बी, मतलब पहले थोड़ा सा उनसे अटैच होना पड़ेगा. You have to go through their profiles and you have to post comment on their work. You have to wait. You did all this, you followed the process? Yes, I follow the process and it Very really nice. impacts. Very So nice. LinkedIn where you have to build your strong network and then applying for the jobs. And in Naukri.com, you have to look for the relevant keywords when applying. According that, the Naukri.com profile will give you the suitable jobs. And I didn't apply for the Flipkart job directly.
I received a call from the recruiter. तो They, नौकरी it's from LinkedIn. LinkedIn. And Policy Bazaar I got from the Naukri.com, and Very nice. Flipkart I got from the LinkedIn. LinkedIn platform. Amazing. Yes. Very nice. So LinkedIn worked for you basically. Yes, LinkedIn was Amazing. that for me. This is a really inspiring story, Deepika. Really inspiring. Now, okay, if you have to give, let's say, 2 or 3 advices to cohort members who, let's say, have recently joined, are feeling a little low, because everybody says the same thing, so they'll also be thinking maybe हमारे लिए होगा या नहीं होगा, पता नहीं हमारा. उनको क्या एडवाइस दोगे आप, अगर आपको स्ट्रेट 2 या 3 एडवाइसेस देने हैं? अगर मैं उनको एडवाइस दूं तो सबसे पहले तो ये कि जब आप अपना प्रोसेस स्टार्ट करते हो, ये जो हमारे 3 स्पेयर्स है लाइफ के, हमें उसको सेट करना पड़ेगा, बट उसको सेट करने में सबसे बड़ा चैलेंज है इनिशियल वही है. हम एक दिन थोड़ा मतलब अगर हम लोग 8 o'clock मॉर्निंग में उठते हैं या जो भी, हमें थोड़ा शेड्यूल करके उसको 7 o'clock करना पड़ेगा. थोड़ा एक्सरसाइज पे टाइम देना होगा, अपने माइंडसेट को थोड़ा मतलब फैमिली मेंबर से डिफरेंट करके कि जो भी हमारा जो स्पेस है वो हमारे लिए ही है जस्ट. उसमें चाहे हमारे रिलेटिव्स है, चाहे मेरी मदर है, चाहे कोई भी है, ब्रदर है, उनको हमें बताना पड़ेगा नहीं, दिस टाइम इज शेड्यूल फॉर माई सेल्फ ओनली, कि मुझे ये स्लॉट अपने लिए बुक करना ही है, और उसमें चाहे मुझे अपने लिए जो भी करना है. तो थोड़ी प्रॉब्लम इसमें होगी फैमिली वालों से, आप लोगों का मतलब जो भी कहते हैं उनको डिसअपॉइंट करोगे थोड़े टाइम डिसअपॉइंट के लिए. होगा. हाँ, तो और हमारी personal growth के लिए. फर्स्ट चैलेंज ये आएगा. सेकंड इज कि व्हेन यू विल सेट, जब आप वो शीट्स फिल करते हो जिसमें आप अपना ड्रीम जॉब फिल करते हो, ये सारी चीजें होती है उसमें आपके माइंड में मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे कि हमें क्या करना चाहिए, whether this will be good for me, अगर someone is from सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या जो भी है, कि जो भी मैंने स्किल्स की थी वो अब रेलेवेंट है या नहीं, क्योंकि एआई आने से काफी चीजें चेंज हुई है. तो उसकी में आपका थोड़ा आपको देखना पड़ेगा चैट जीपीटी से हेल्प लेके कि ऐसे कौन सी स्किल्स है और कीवर्ड्स है जो अभी भी आपकी प्रोफाइल से मैच हो रहे हैं. तो वो आपका एनालिसिस हो सकता है एक बार में ना पता चले, 2 बार करना पड़े, 3 बार करना पड़े. तो उस पे वर्क करने में आपको टाइम लगेगा पहले विद दीज थिंग्स. एंड उसके बाद जब ये चीजें भी सॉर्टेड हो गई, देन आपको अपनी स्किल्स जो है कि आपको जो लर्निंग फेज है वो कहाँ से कवर अप करना है, आपको पेड अप कोर्स लेना है या अनपेड कोर्स लेना है अपने स्किल्स के लिए. बट आई एडवाइज कि मैंने वैसे पेड कोर्स लिया था स्टार्टिंग के टाइम में, क्योंकि मेरे को जो करियर गैप था काफी था, तो मुझे मतलब डिफाइंड वे में चाहिए था स्ट्रक्चर, की डिफाइंड वे में आई गॉट टू लर्न. बट उसके बाद मैंने देखा कि आप यूट्यूब से भी काफी हेल्प ले सकते हो. यूट्यूब से काफी अच्छी फ्रूटफुल वीडियोस अवेलेबल है अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए. यूट्यूब कोर्सेरा भी नो डाउट कोर्सेरा से. और उसके बाद में आपकी वर्चुअल इंटर्नशिप्स आती है जो आप forel.com से कर सकते हो. वो काफी इम्पैक्टफुल होती है आपके रिज्यूमे में. अगर आप अपने लिंक्डइन पे भी करियर गैप दिखाओगे तो वो मतलब अच्छा नहीं लगेगा सामने वाले को. तो उसकी जगह आप अपने इंटर्नशिप सिखा सकते हो वहां पे करके, जो आपका सिमुलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं आप उसको करके वहां शो कर सकते हो. तो ये स्टेप तो नेसेसरी है, उसमें आपको टाइम देना पड़ेगा. इनिशियली 3 to 4 months इस पूरे प्रोसेस में लगेंगे. ऐसा नहीं है कि पेशेंस रखने के लिए आप बोल रहे हो इनडायरेक्टली कि आप प्रोसेस पे फोकस करो और थोड़ा पेशेंस रखो और स्टेप बाय स्टेप करो इस चीज को. आप आफ्टर internships then you will start applying for मतलब revamp your resume and LinkedIn profile and then start applying for the jobs. And jobs में भी ऐसा होगा आपको डेली बेसिस पे. मेरे को स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा ये था कि नहीं हमें डेली ज्यादा जॉब्स पे अप्लाई करना पड़ेगा तभी हमें जॉब्स मिलेगी, बट नहीं. जो आपके रेलेवेंट जॉब्स है, सपोज आपकी ने दिल्ली लोकेशन में ही सर्च की है, तो दिल्ली लोकेशन में सिर्फ 5 to 6 जॉब्स आ रही है, तो आप दिन में 5 to 6 जॉब्स ही पे ही वो करो, बट 80-20 रिज्यूमे के थ्रू अप्लाई करो. उसमें अगर आप ऐसे ही मतलब इसमें 2 ऑप्शंस आते हैं, इजी अप्लाई और गो टू द मतलब वेबसाइट. बट इजी अप्लाई करने से आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे आपको. यस, तो उसमें ये स्टेप्स रहेंगे. तो डेली बेसिस पे आपको 4 to 5 जॉब्स अप्लाई करना होगी लिंक्डइन प्रोफाइल पे. एंड नौकरी पे ऐसा नहीं रहता कि आपको मतलब खुद उसमें ऑप्शंस आपके पास अपने आप आते हैं, आपको जस्ट उस पे रेलेवेंट कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग सर्च करना होता है और देन अप्लाई करना होता है. उसके बाद ठीक है ये भी हो गया. इसके होने के बाद आपके पास कॉल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. मेरे पास 2 कॉल्स आए थे पहले, पर उस कॉल में क्या हुआ था, जो मेरा फर्स्ट राउंड ही था उसी में कुछ नहीं हुआ था.
मतलब आई एम नॉट गेटिंग हैपनिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द Okay. एचआर। Okay. तो उस टाइम पे आपको डिमोटिवेट नहीं होना ये सोच के हम्म। कि मे बी मेरे रिज्यूमे में करियर गैप है, इस वजह से मेरे को कॉल नहीं आया। हो सकता है कि जैसे सर ने बताया कि आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाए उस टाइम अच्छे वे में, ये के भी रीजन हो सकता है। बट बिलीव इन योर सेल्फ कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों डेफिनेटली यू विल रिसीव अ कॉल एंड यू विल गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो दीज आर द स्टेप्स आई फॉलो Very nice. एंड इट रियली वर्क्स। मतलब जो प्रोसेस है, प्रोसेस के थ्रू अगर हम जाएंगे तो ये चीजें पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं होगी एंड इट टेक्स टाइम। इट सीम्स मतलब आपके पास एक कॉम्बिनेशन है प्रोसेस बैक्ड अप बाय फेथ का। मतलब आपने प्रोसेस फॉलो किया एंड यू वेर फेथफुल कि भाई प्रोसेस से रिजल्ट्स आते हैं तो आई विल कीप फॉलोइंग द प्रोसेस। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीसरी बार होगा। यस राइट, अमेजिंग। आई आल्सो रियली लाइक कि कैसे आपने हड़बड़ी नहीं की कि चलो फटाफट जल्दी जल्दी जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जो मैक्सिमम लोग गलती करते हैं। फिर वो हाँ डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कहीं से कुछ नहीं आ रहा। बट राइट। यू टेलर्ड एवरीथिंग स्पेसिफिक टू जॉब डिस्क्रिप्शन। तो आपने 4-5 जॉब्स के लिए अप्लाई किया डेली, बट टेलर्ड वे में अप्लाई किया। दैट वाज वेरी वेरी नाइस। हाँ बेसिकली यही सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है हमारे साथ, क्योंकि मुझे किसी ने मिसगाइड किया था स्टार्टिंग में कि नहीं, यू हैव टू अप्लाई डेली 20 to 30 जॉब्स ऑन डेली बेसिस। बट जब मैंने एक्चुअली उसको देखा कि 20 to 30 जॉब्स ऑन डेली बेसिस नॉट पॉसिबल, और वो पॉसिबल ही नहीं है, इतने जॉब्स आप एक सिंगल डे में अप्लाई नहीं कर सकते। एंड देन फिर मेरा आपके साथ जब जैसे डिस्कशन हुआ तो आपने बताया कि नहीं, आपको इस वे में करना पड़ेगा। फिर जब चीजें मैंने प्रैक्टिकली करनी स्टार्ट की, नहीं हाँ कि हमें 5 to 6 जॉब्स ऐसे सिलेक्ट करनी है अपनी डेली बेसिस पे जिसपे मुझे अप्लाई करना है अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग। और आपकी जो भी प्रोफाइल है उससे सिमिलर कीवर्ड्स वाली प्रोफाइल्स पे भी आप सर्च कर सकते हो। समटाइम्स द कंपनीज मतलब मेंशनिंग कि यू रिक्वायर्ड फ्रेशर्स और 1 to 3 ईयर एक्सपीरियंस, तो उस वाली जो जॉब प्रोफाइल है उसमें भी आप अप्लाई करो। ऐसा नहीं कि उसको आप छोड़ दो, क्योंकि दे वांट समवन विद अ गुड स्किल्स। तो हो सकता है कि उस बकेट में भी आपका नंबर आ जाए, तो ये चीजें भी है। Amazing. Wow, Deepika. I mean, great insights for all the warriors. Plus, generally भी जिनको करियर गैप है, चाहे वो हमारी कम्युनिटी में हो या हमारी कम्युनिटी में नहीं भी हो, your insights will help them big time. Are you okay if we share this journey of yours with people who actually need it on YouTube or through our pod? Are you all right with that? Yes, no issue. Yes. Perfect. Thank you so much. Perfect, Deepika. Thank you so much for this. I'm stopping the recording right now and then we'll continue. Okay, sure. Okay. Thank you.